Hello everyone, good afternoon. I am CP sir. Today I will discuss about structure of microsporangium. First, first lecture have a consist of microsporangium. Then have a second lecture structure of microsporangium with diagrams. The microsporangium are developed in stamens of the flowers which are developed in a anther. The development of the microsporangium is a eusporangiate, that is group of the superficial initial cells. The group of the superficial initial cells is a meristematic tissue-like cells have been developed to formation of archisporial cells. This is a figure. Student have this is a figures for development of the microsporangium. First of all, archisporial cells. Archisporial cells are developed from group of the superficial initial cell. Superficial initial cells have a consist of parenchymatous cells which have a capability to continuous growth for development of the archisporial cell. Then other, this is a outer epidermis and other other consist of the parenchymatous cells. First structure, a figure. Second, the archisporial cells are divided by periclinally. Archisporial cell have the capability to continuous division and growth to development of the माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है आर्चीस्पोरियल सेल. आर्चीस्पोरियल सेल आर डिवाइड बाय पेरिक्लाइनली. पेरिक्लाइनली डिवाइड होने के बाद यह जो है फॉर्मेशन करता है टू टाइप ऑफ द सेल्स. फर्स्ट हैव ए कंसिस्ट ऑफ primary parietal cells. The primary parietal cells is a outermost protective layer of the microsporangium. The primary parietal cells are developed to formation of the microsporangium of the microsporangium. Second, inner primary sporogenous cells. ओके, द आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर के टू टाइप ऑफ द सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं. और सेकेंड है आपका जो है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स. दिस इज ए इनर सेल, दिस इज ए आउटर सेल्स. ओके, द प्राइमरी पैराइटल सेल्स are divide and redivide to formation of the many layer or many wall of the microsporangium. This is explained on the fourth figures. The primary parietal cells have occur in the third figures and fourth figures. Later on, primary parietal cell are divided and redivided to formation of the
following layer. First of all, epidermis or exothecium. सेकेंड है इंडोथीसियम. थर्ड है मिडिल लेयर. फोर्थ है इनर लेयर और टेप्टम लेयर्स. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल epidermis. Epidermis or exothecium is a thick layer which is a outermost protective layer of the microsporangium. Which consists of the thick and help in the protections of the microsporangium. सपोर्टिंग का काम करता है. यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है. यह थिक लेयर होता है. यह जो है कभी कभी जो है एक्जोथीसियम का फॉर्मेशन में सहायता करता है, या इसी लेयर को हम कभी कभी एक्जोथीसियम कहते हैं. सेकेंड इंडोथीसियम. इंडोथीसियम आर फाउंड below the epidermis or exothecium. Which have a consist of fibrous layer or fibrous thickening or fibrous band. This is a help in the dehiscence and dispersal of the microspore और माइक्रोस्पोरेंजियम के डेहिसेंस और डिस्पर्सल में यह सहायता करता है. इंडोथीसियम. यह इंडोथीसियम, एक्जोथीसियम या एपिडर्मिस, यह जो है आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेवलप होता है और कहीं नहीं पाया जाता है, ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. और इसका काम है, इंडोथीसियम का काम है, कभी कभी यह जो है जब मैच्योर हो जाता है, माइक्रोस्पोर वगैरह जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनको डिस्पर्सल करने में सहायता करता है, डेहिसेंस करने में सहायता करता है. ओके. थर्ड है आपका जो है मिडिल लेयर. द मिडिल लेयर आर फाउंड below द इंडोथीसियम which have a consist of 2 to 3 layer. The middle layer are made by thin parenchymatous cells which help in the storage of the food. मिडिल लेयर का काम है, यह फूड को स्टोरेज करता है और ट्रांसफ़र करता है डेवलपमेंट में, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है. तो मिडिल लेयर जो है यह थिन पैरेनकाइमेटस से बना होता है. इसमें जो है आपका स्टोर करने का काम करता है, फूड को स्टोर करता है. ओके स्टूडेंट्स, इसका काम ही है फूड को क्या करना, स्टोर करना. जो कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है तो वह जो है फूड एब्जॉर्ब करता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका जो है फोर्थ टेप्टम लेयर और न्यूटिटी लेयर. द टेप्टम लेयर और न्यूटिटी लेयर आर अकर्स below the middle layer. Middle layer, the टेप्टम layer are also known as nutritive layer because it help development of microspore or pollen grains or provides nutrition for development of pollen grain or microspore mother cells.
ओके। द टेप्टम लेयर आर टू टाइप्स। कभी कभी टेप्टम दो प्रकार के हो जाते हैं, अमीबॉयडल टेप्टम और प्लाज्मोडियल टेप्टम। सेकेंड है सिक्रिटरी टेप्टम और ग्लैंड्यूलर टेप्टम। अमीबॉयडल टेप्टम जो होता है वह बहुत रेयर केस में पाया जाता है, जैसे ट्रैपा वगैरह प्लांट है, इस सब में यह जो है पाया जाता है। और सेकेंड सिक्रिटरी टेप्टम यह सबसे ज़्यादा जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। दिस इज ए डेवलप इन ए मोर इन नंबर्स आर मोर न्यूमरस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यह सिक्रीशन का काम करता है। सिक्रिटरी टेप्टम जो होता है या ग्लैंड्यूलर टेप्टम, यह सिक्रीशन का काम करता है, जो क्या करता है कि यह सिक्रीट करता है, जैसे फैट वगैरह हो गया, प्रोटीन हो गया, एक यूबिस्क बॉडीज का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। कौन सा? टेप्टम लेयर और सिक्रिटरी लेयर। सिक्रिटरी लेयर क्या करता है? एक यूबिस्क बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। यूबिस्क बॉडीज क्या करता है कि यह एक फैट लाइक प्रोटीन वगैरह जो है सिक्रिट करता है, एक विस्कस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो इस पॉलन ग्रेन पर स्पोरोपॉलिनिन के फॉर्मेशन में सहायता करता है। पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है इक्जोथीसियम लेयर पाया जाता है, इक्जाइन पाया जाता है, जो क्या करता है कि उसमें स्पोरोपॉलिनिन के फॉर्मेशन में सहायता करता है। स्पोरोपॉलिनिन की वजह से ही जितने पॉलन ग्रेन स्टोर किए जाते हैं जर्म प्लाज्मा, पॉलन बैंक या जीन बैंक में, वह लॉन्ग समय तक स्टोर कर सकते हैं। स्पोरोपॉलिनिन की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और स्पोरोपॉलिनिन का काम क्या है? यह एक प्रोटीन वगैरह फैट का सिक्रीशन करता है, विस्कस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो पॉलिनेशन में सहायता करता है। पॉलिनेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा by the any agency is known as ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका जो है प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू या प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। जो थर्ड फिगर है आप देखेंगे, थर्ड फिगर में इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो यह कैसे हुआ है वही चीज़ें हमें आपको इसमें देखना है। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल होता है, और इसका जो है मेन रोल यह है कि यह पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरेंजियम के माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में सहायता करता है। और इससे पहले जो हम प्राइमरी पैराइटल लेयर पढ़े हैं या सेल पढ़े हैं, यह वाल फॉर्मेशन करता है। यह क्या करता है? इनके सपोर्टिंग का काम करते हैं सभी लोग, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करना, उनको जो है भोजन देना, उनको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करना। या प्राइमरी पैराइटल लेयर के जितने भी वाल लेयर आपको फॉर्मेशन हुआ है वह चीज़ें यह काम करता है, इनको सपोर्ट करता है। अगर यह सपोर्ट नहीं करता प्राइमरी पैराइटल लेयर, तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का डेवलपमेंट नहीं होता। जब प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का डेवलपमेंट नहीं होता तो क्या होता कि जो है अदर प्लांट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। मतलब प्लांट क्या है वो इसी समय डिस्ट्रॉय हो जाता, न्यू प्लांट न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए यह जो है सभी जो प्राइमरी पैराइटल के जितने भी एपिडर्मल, एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम, मीडियल टेप्टम लेयर हैं, यह इनके सपोर्टिंग काम करते हैं। अगर यह सपोर्ट नहीं करता तो समझ लीजिए कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता, नष्ट हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर आपको देखते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के बारे में। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल क्या होता है? अब प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? आर्ची स्पोरियल सेल। यह जो है सेकेंड फिगर में आप देखेंगे
तो आर्ची स्पोरियल सेल से हुआ है। ओके, अब आर्ची स्पोरियल सेल क्या करता है, या डिवाइड होगा तो फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल्स। क्या करता है, मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल। ये देखिए आपको जो है यहाँ पर मेनी स्पोरोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे हमें आपको इंडिकेट क्या करना है, मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहीं पे आप लिखिए मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन कर देता है। अब यही मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल जो है क्या करेगा कि माइक्रो 5 फिगर में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर देगा। 5वां फिगर आप देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर देगा। यह जो 5वां फिगर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, द मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल, द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल्स। अब यही मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल में क्या होगा, मास ऑफ द स्पोरोजीनस सेल्स में क्या होगा, लास्ट जनरेशन होगा, बिहेव करने लगेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। यह जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यह जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यह माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। जब मियोसिस हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका मैं आपको 4 हैप्लॉयड माइक्रो स्पोर आर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 4 हैप्लॉयड माइक्रो स्पोर आर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका फिगर आपको मैं बता रहा हूँ कि यह चीज़ें जो है ऐसे रहता है। ठीक है, इसका फिगर आपको ऐसे रहता है। ठीक, 4 हैप्लॉयड माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा।